Okay, now we will continue the session. In the previous, we have talked about the Uniform Civil Code, an important case regarding the bigamy, that is 494 of the IPC and 495 of the IPC. Obviously, now we will go on to the another important case, that is the Mandal case, and I will be talking about few judgments, very important landmark judgments, and I will go then to the 103 that third amendment of the Indian Constitution. So quickly, let's talk about this. See, in which landmark constitutional case which is obviously which landmark constitutional case is known as the Mandal case. So before we get into that, we should have the dictum which was laid down in the Indra Sawhney versus Union of India 1993 nine judges bench. And again I will speak the same thing, that don't get into the so much of content written here, because I have to give you the gist of the section, all the of the whole judgment. But I want to tell one more point, one more important point, that if you will see, if you have the Bare Act, so please see Article 15 and then come to Article 16, because in the Article 15, which talks about the reservation in schools and colleges. See, reservation in school and colleges means the educational institutions, that 15 will be covering. But when you go come to the 16, that is they are talking about the reservation in the reservation in the case of appointments, post, like in the case of job, you can say. And that is also at the initial level. Okay, that is also in the initial level, not in the case of the promotions. Okay, so not in the case of the promotions. Now employment, you can say public employment, opportunity of the equality of opportunity in the matter of the public employment, that 16 will be governing. So we are basically concerned with the 15 ka 4, 15 ka subclause 4, and also the 16 ka subclause 4. So 15 ka subclause 4 talks about that the nothing in this article of the clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of social and educational backward classes of the citizens, and for the scheduled caste and the scheduled tribes. So see, this is what this is regarding the 15 ka 4. And let's read quickly the 16 ka 4, which talks about that nothing in this article shall prevent the state from making the provision for the reservation of the appointment or the post in the favor of the backward classes of the citizens in the opinion of the state, which are, and the ground here is that which are actually not adequately represented. See, which are not adequately represented in the service of the state. तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड्स आपके 15 में क्या क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये ग्राउंड है। लेकिन जबकि जो ग्राउंड 16 में है वो है आपका इन एडुकेसी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन दी सर्विसेज अंडर द स्टेट्स। तो ये तो मैंने क्विकली एक आपको आर्टिकल आपको बताया है कि व्हाट आर्टिकल यू हैव टू रीड। अब क्विकली आई एम कमिंग टू द इंदिरा साहनी एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको मंडल केस बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए 1979 में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को बनाया गया था बीपी मंडल जी के चेयरमैनशिप में, और ऑब्वियसली इन द आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। तो उन्होंने मेजर्स वगैरह कुछ सजेस्ट करे थे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो 27% रिजर्वेशंस की बात हुई थी ऑब्वियसली ओबीसीज में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंडल केस और द सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1979 बाय जनता पार्टी अंडर द प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई। ये आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई याद रखिएगा, ठीक है। मोरारजी देसाई, ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर कौन प्राइम मिनिस्टर थे, तो यू शुड नो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट थी अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, दैट इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है। अब यहाँ पर with a mandate to identify social and educational backward classes. Now I will talk about that in the present case. I am coming to the gist. I am not getting into the so much of detail क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। So what was laid down here is that कि 27% जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं that is fine for the OBCs, but इसमें से क्रीमी लेयर को हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्रीमी लेयर को हम एक्सक्लूड कर देंगे, उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर obviously well developed classes and they are excluded. So in the OBCs 27 ये 27 जो % reservation था that was upheld. Also
Also, it was held that barring the extraordinary situation, reservation should not exceed the 50%. 50% से ज़्यादा जो है आपका रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए. दिस इज द एक्चुअली अपर लिमिट. अपर लिमिट को यहाँ पे सेट कर दिया गया था और ये ऑब्वियसली ये इट वाज रिगार्डिंग द स्कोप एंड द एक्सटेंट ऑफ 16 का चार्ज जो भी मैंने अभी रीड आउट किया था, एंड विच प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन ऑफ द जॉब इन द फेवर ऑफ ऑब्वियसली बैकवर्ड क्लासेस वाज एग्जामिन्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इट अपेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन को तो इन्होंने कर दिया था, एंड द प्रॉस्परस सेक्शंस ऑब्वियसली अमंग द ओबीसी जो कि क्रीमी लेयर हैं शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ द रिजर्वेशन. तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है. और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन द कैरी फॉरवर्ड रूल इन द केस ऑफ अनफिल्ड और बैकलॉग वैकेंसीज इज वैलिड. अब आपको कैरी फॉरवर्ड रूल के लिए आप क्या देखेंगे, तो आपको देखना होगा 16 का 4 भी देखिए कैरी फॉरवर्ड रूल के लिए होता है. 16 का 4 जो है रिगार्डिंग दी है मैटर ऑफ प्रमोशन एंड विद द कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी. कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब जैसे पिछले साल या लगातार 3 साल से जो पिछले जो भी सीट्स खाली रह गई थी उनको हम जो क्यूमुलेटिवली 3 साल की ली जाती हैं, 3 साल की जो वैकेंसीज खाली थी उनको हम एड ऑन करके जब नेक्स्ट जब जॉब के लिए वैकेंसीज आती हैं तो उनमें हम सेपरेटली उन्हीं सोशल और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उन्हीं के बच्चों के लिए या उन्हीं लोगों के लिए फिर वो सीट्स को दिया जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कॉल, ये कहाँ से आया था, 85th अमेंडमेंट एक्ट से आया था और इसको हम जो है कैरी फॉरवर्ड आपको क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड रूल भी बोला जाता है इसको. ठीक है, अब मैटर 4A टॉक्स अबाउट द मैटर इन प्रमोशन एंड द कंसिक्वेंशियल रिलीफ. तो ये थोड़ा सा मैंने जस्ट एड ऑन किया है आपको. सो फर्दर आई एम नॉट गेटिंग इनटू द सो मच डिटेल क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है. एंड द परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, एक और बात यहाँ पर बोली गई थी, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि द परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन द कंप्लेंट ओवर द इंक्लूजन एंड द अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ द ओबीसी अकॉर्डिंग टू द NCBCs वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑब्वियसली 1993 में फिर वो एस्टैब्लिश किया गया था. तो यहाँ पे इंद्रा साहनी में आपको पता चल गया कि क्या क्या बातें हुई. एक तो कैप है 50% का और 27% का रिजर्वेशन वगैरह, वो सारी बातें दैट इज़ फाइन बट एक्सक्लूडिंग दी ओबीसीज, दैट इज़ द थिंग. अब देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे 27 साल के बाद 103 अमेंडमेंट जब रिसेंटली 2019 में आया तो उसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन दी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज को दिया गया. अब इसमें 16 का 6 और 15 का 6 ऑब्वियसली ऐड किया गया था, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% टू रिजर्व किया गया था. मीन्स दैट इज द एडिशनल इन एडिशन था, मतलब अपार्ट फ्रॉम 50% रिजर्वेशन 10% क्या था वो एक उसको अलग से दिया गया है. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन टोटलिटी क्या हो गया, 60% रिजर्वेशन हो गया. सो कैप तो जो हमारा इंदिरा साहनी में लेट डाउन किया गया था 50% का कैप था, तो यहीं पे कन्फ्लिक्ट एक अराइज होता है. तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी PILs वगैरह जो है लोगों ने फाइल करी कि जो 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन इज ओवर एंड अबव द 50% कैप. मीन्स इट वाज अ कंटेंशन ऑफ द पीपल हु आर फाइलिंग दी 13 पीपल हु फाइल्ड दी एक्चुअली दी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस वगैरह जो फाइल हुआ था. ठीक है, तो केस में इस प्रेजेंट केस में आपको मैं बताऊंगा, वो केस भी बताता हूँ जिसमें यहाँ पे फाइल्स हुई थी और डिसीजन भी दिया गया. तो इसमें यहाँ पे फर्दर वही सेम क्राइटेरिया को लेट डाउन किया गया कि इंदिरा साहनी में कि भाई it upheld the 27% of the reservation of the OBC subject to the creamy layer being excluded, जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, and it also held that reservation under the carry forward और the backlogs जिसे बोलते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी, reserved vacancy should not exceed 50% of the appointment every year. ठीक है, तो वो एड ऑन होने के बाद वैसे 3 साल का क्यूमुलेटिव लिया जाता है एज ए जनरल जो व्हाट आई हैव सीन, तो ये भी है. एंड इट ऑल्सो रूल्ड दैट द रिजर्वेशन कैन बी मेड इन द सर्विसेज और द कैटेगरीज ओनली व्हेन द स्टेट इज सेटिस्फाइड. नाउ सी ये वाला जो है ना, ये जो आपका कैरी फॉरवर्ड रूल्स वगैरह वगैरह, ये देखिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द काइंड ऑफ जॉब्स. ये पर्टिकुलरली व्हेन द स्टेट विल स्पेसिफाई कि भाई इन द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द सर्विस, तभी ये एप्लीकेबल होता है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. इट इज रूल्ड दैट रिजर्वेशन कैन बी मेड इन द सर्विस और कैटेगरी ओनली व्हेन द स्टेट इज सेटिस्फाइड दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स देयरइन इज नॉट एडिक्वेट. तो अब भी एक क्लियर हुआ आपको कि जब पर्टिकुलरली देखा जाएगा कि बैकवर्ड क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन है किसी पर्टिकुलर सर्विस में, देखिए डिफेंस में तो होता ही नहीं है, वहाँ तो हटा दीजिए, तो जो भी सर्विसेज अंडर द स्टेट होते हैं वहाँ पर आपके कैटेगरीज को स्पेसिफाई किया जाएगा ऐसे इन द ऑफिशियल गैजेट ऑब्वियसली, तभी होगा वहाँ पर. ठीक है, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द जॉब्स माइंड यू. ओके, तो अब यहाँ पर एक और जजमेंट को मैं डिस्कस करता हूँ क्विकली. देखिए एम नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे ये 2006 का जजमेंट है. अब यहाँ पर देखिए
जो petitioner थे उन्होंने चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। वैसे 4 एक्ट्स को यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट्स को चैलेंज किया गया था कि तो 77th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसने 16 का 4A ऐड किया था ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे 16 का 4A मैंने बताया था आपको प्रमोशन एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ का था, और 4B आपको मैंने बताया कि भाई कैरी फॉरवर्ड रूल है, इनको चैलेंज किया गया था। और ये भी बोला गया, पेटिशनर ने आर्गू किया कि जो अमेंडमेंट है वो एम्ड एट रिवर्सिंग द इंदिरा साहनी जजमेंट को करता है और बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, लेकिन कोर्ट ने फाइनली इसमें अपहेल्ड कर दिया था। ये बताया आपको, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 4A है तो आपका 77th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, एंड इन फैक्ट 4B जो है आपका 85th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स थे कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था इनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, एंड इट रूल्ड दैट इफ द स्टेट एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन एंड मेक ए प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SCs STs, द स्टेट हैज़ टू कलेक्ट द क्वान्टिफाइबल डाटा। अब यहाँ पर एक इशू बनेगा कि यहाँ पर क्वान्टिफाइबल डाटा की बात करी गई थी। अब देखिए एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 335 से इज दैट कि अगर आप SC STs में मान लीजिए रिजर्वेशन करते भी हैं तो एट द सेम टाइम जैसे कि आपको एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 335 से एक्सप्लेनेशन से आ जाता है, वहाँ प्रोवाइजो से आ जाता है। अब यहाँ पर कंप्लायंस तो करना पड़ेगा कि भाई इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एडिशन टू द कंप्लायंस ऑफ द आर्टिकल 335, ये भी बातें हैं। तो मीन्स द 50% जो सीलिंग लिमिट था वो तो उन्होंने करेक्टली बोल दिया था, एंड ऑब्लिटरेट द क्रीमी लेयर्स और एक्सटेंडेड रिजर्वेशन इनडेफिनेटली, मतलब यहाँ पर दिस पार्ट की 50% का कैप भी करेक्ट है, वो सारी बातें ठीक थी, लेकिन यहाँ पर क्वान्टिफाइबल डाटा का बात किया गया था। तो इसमें यहाँ पर जो क्वान्टिफाइबल डेटा के आधार पे बोला हुआ है ना कि स्टेट हैज़ टू कलेक्ट क्वान्टिफाइबल डेटा, ये इंदिरा साहनी जजमेंट में नहीं था। तो इस इशू को जर्नैल सिंह की एक जजमेंट थी 2018 की जजमेंट में, वहाँ पर ही जब रेज किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि भाई 9 जजेस बेंच ने, चूंकि अब ये आपका नागराज जजमेंट तो 5 जजेस बेंच था, ऑनरेबल 5 जजेस बेंच, और आपका इंदिरा साहनी 9 जजेस बेंच था, और जर्नैल सिंह जजमेंट भी आपका 5 जजेस बेंच था। तो यहाँ पर इशू ये था कि भाई क्वान्टिफाइबल डाटा की बात अर्लियर हायर बेंच ने तो कहा नहीं है, तो अब जर्नैल सिंह जजमेंट अगर आ भी जाती है तो वो ओवररूल तो नहीं कर सकती है नागराज को। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली कि भाई जो नागराज जजमेंट का ये क्वान्टिफाइबल डाटा वाला बात है, इट इज़ पर इंक्वेरियम का मतलब इट वॉज without the due consideration of the early pre-settled law by the हायर बेंच, यानी पहले से जो कुछ बात सेटल हुई थी उसको ध्यान में ना रखते हुए जजमेंट आई थी। तो यहाँ पर बस इस पार्ट को कि क्वान्टिफाइबल डेटा की बात है, इसके बारे में इन्होंने ये पॉइंट रख दिया, ठीक है, कि इन पर क्यूरियम था। और 50% क्वान्टिफाइबल डाटा तो नागराज का एकदम करेक्ट ही था, इट वॉज इन कॉन्सोनेंस विद दी इंदिरा साहनी जजमेंट। सो जर्नैल सिंह में इन्होंने 2018 में मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाला जो केस है वर्सेस, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड हिज वर्डिक्ट दैट इन द रिजर्वेशन इन द promotion case, the 5 judges bench of the Supreme Court unanimously held that judgment delivered in the Nagraj 2006 में relating to the reservation and promotions for the SC ST person does not need reconsideration by the larger 7 judges। इसमें यहाँ पे एक और बात थी कि यहाँ पे ये भी बोल दिया गया था नागराज जजमेंट में कि इसको रेफर करिए जो SC STs का जो रिजर्वेशन है प्रमोशंस के केस में, क्योंकि प्रमोशंस के केस में SCs STs में तो ये एप्लीकेबल है, बट ओके तो ये एप्लीकेबल होता है। इसको उन्होंने बोला था कि 7 जज में आप रेफर करें, तो इसमें जर्नैल सिंह में की जजमेंट में ये भी बोल दिया गया था कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ओके। और इन द नागराज जजमेंट ऑन द के रिस्पेक्ट में बोला द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द स्टेट चूज टू ग्रांट रिजर्वेशन इन प्रमोशन द स्टेट मस्ट कलेक्ट द क्वान्टिफाइबल डाटा टू डेमोन्स्ट्रेट द करंट backwardness of the SCs the state being granting the reservation in promotion. For further backwardness the judgment held that further backwardness condition is contrary to the 9 judges bench a decision in Indra Sawhney, and Honorable Justice Nariman RF Nariman held that Indra Sawhney does not allow the collection of the quantified data as a prerequisite for granting reservation in promotion। तो यहाँ पे नागराज में भी इन्होंने एक्चुअली ये बोल दिया था कि आपको SCs STs के केस में भी जो है आप क्वान्टिफाइड डाटा कलेक्ट करें, तो इन्होंने इसको बोला कि ठीक है ये वाला पार्ट, क्योंकि हायर जज बेंच ना हमारे जो है 9 जजेस बेंच इंदिरा साहनी जजमेंट है, तो उसमें इन्होंने बोला कि वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है कि 50% सीलिंग वाला बात तक एकदम करेक्ट है, और इस मैटर को 7 जजेस बेंच को रेफर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज टिल नागराज जजमेंट। तो ये तो आई हैव एक्सप्लेन, एंड ऑल्सो हैव एक्सप्लेन दैट कि आर्टिकल 335, अच्छा 335 में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी आपको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो
obviously 50% ceiling limit of the reservation has been engrafted as a part of the basic structure of the constitutions वगैरह में होता है. अब इशूज देखिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अभी रिसेंट था, इसका जो इशू था ईडब्ल्यूएस में से इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन, इसका केस जब पीआईएल वगैरह डाला तो अब आपको याद रखना है विच इज़ इंपॉर्टेंट, द यूथ फॉर इक्वलिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको आपको ध्यान में रखना है. अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि भाई इन जनवरी 2019 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट 2019 and enabled the state to make reservation in higher education and matter of the public employment. और इसमें 16 का 6 और 15 का 6 को ऐड किया गया था, ये भी हमें दोनों याद रखने हैं आपको. और फाइनली देखिए जो भी इशू था इसके अंदर फाइनली जो मीन्स ऑब्वियसली अंडर 15(6) व्हेन आई टॉक अबाउट इनेबल्स द स्टेट टू मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो स्कूल और कॉलेजेस में लगता है, ये आपको याद रखना है. एंड द स्टेट इट स्टेट्स that such reservation can be made in educational institution including private institution में भी लगेगा, whether aided हो चाहे unaided हो, except the minority educational institution covered in under article 30 का 1. It further states that upper limit of EWS reservations will be 10%, meaning 10% of the seat can be reserved for the citizens falling in the EWS category, and the 10% ceiling is independent of ceiling of the existing reservation. जो existing reservation 50% था ना, उसके हट के ये है independent है 10%, यानी total reservation 60% हो जाता है. अब आगे चलते हैं. 16 का 6 इनेबल करता है स्टेट को टू मेक द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, अगेन दीज प्रोविजंस विल बी सब्जेक्ट टू 10% सीलिंग इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन से हटके. ठीक है, तो सेवरल पटिशंस को फाइल किया गया था एंड आई हैव टोल्ड ऑलरेडी दैट कि इनमें भी सुप्रीम इंदिरा साहनी जजमेंट वगैरह सबको कोट किया गया. ठीक है, और आप अगर देखेंगे तो एट प्रेजेंट 49.5% जो है वो एजुकेशन एंड पब्लिक अपॉइंटमेंट्स आर रिजर्व्ड है, और आपका 15, 7.5 एंड 27% कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, और 27% ओबीसीज़ को है. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स को देखिए 7.5 एंड एससीज़ को 15%. तो यानी जो इन टोटलिटी जो टोटल अगर हम ऐड ऑन करते हैं ऑलमोस्ट 50% के हट के ये 10% था, यानी टोटली अगर आप देखेंगे तो 60 हो जाता है. लेकिन फिर भी फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉन्स्टेंटली रूल्ड दैट फॉर द रिजर्वेशन टू बी रीजनेबल एंड नॉट रीजनेबल है एंड नॉट डिफीट द मेन राइट टू इक्वलिटी, एंड द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 50%. ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए. हाउएवर लेकिन जो 50% के जो सीलिंग है जो कि 9 जजेस बेंच ने लेट डाउन किया था इंदिरा साहनी जजमेंट में, stands if it effectively breached by the latest कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 103, यानी जो अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके थ्रू ये इफेक्टिवली इसको ब्रीच कर दिया गया है. यानी ऑब्वियसली होता क्या है, जब भी कोई जजमेंट आई तो आने के बाद जो पार्लियामेंट या कोई गवर्नमेंट होते हैं वो अपना अमेंडमेंट ला सकते हैं. ऑब्वियसली दे हैव द पावर, दे हैव द प्रेरोगेटिव ऑफ डूइंग दिस, एंड ऑब्वियसली दे एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड. दिस इज द डिक्टम एक्चुअली. सो फाइनली we had started with the important landmark judgment. इंदिरा साहनी से मैंने शुरू किया, and then I came to नागराज judgment, then I talked about the जर्नैल सिंह judgment, लक्ष्मण नारायण वगैरह पूरा वो डिस्कस किया, and then finally I came to the youth जो अभी लेटेस्ट judgment I have talked about. ठीक है, तो I think रिजर्वेशन पार्ट में इतना ही था. मुझे जितना आपको बताना था एक बहुत समरी में मैंने आपको बताया क्विकली. डिटेल में तो फिर आपको आर्टिकल्स पढ़ा के वो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा. सो क्विकली हैव एक्सप्लेन कि आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल जाए, फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर कर लेंगे. तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम नेक्स्ट जो सेशन होगा मैं उसमें आपको जो है यूथनेशिया के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है रिगार्डिंग द यूथनेशिया. सो आई थिंक गॉड ब्लेस टू एवरीवन. कीप प्रिपेयरिंग, डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, get selected, and all the best for your careers. Thank you.